Hello and welcome, my dear students. This is the second part of topic tautomerism. In this, we will be finding how much enol content is produced as far as this equilibrium is concerned between two tautomers. Let me remind you a bit, recapitulate a bit about tautomerism. I told you last time tautomers वो वाले कंपाउंड्स दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा. सो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट एंड सर्टन फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, लाइक वी हैव कार्बोनिल कंपाउंड्स, लाइक वी हैव अमाइड्स, लाइक वी हैव नाइट्रो कंपाउंड्स, like we have imines. So these are the functional groups, functionalities. इनके साथ में अटैच होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, not with the case of not necessarily with amides, because it is this hydrogen which goes from atom number 1 to atom number 3rd, because there occurs 1,3 migration. अगर आप ने इससे पहला वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पार्ट 1 इसका देखिए, उसके बाद में जो है आपको ये पार्ट 2 इसका समझ में आएगा. So these were the functional groups, and alpha hydrogen presence was must, and that too with sp3 carbon atom, sp3 atom. So then only you can have the formation of tautomers, and the phenomena was called as tautomerism. Now we're going to talk about now how much enol content is produced. For example, हमारे पास एक carbonyl system है. So you have an aldehyde that's a keto form. It converts into an enol form. That is, this is the alpha, this is the functional group, this is the alpha carbon, and this is the alpha hydrogen. This moves from this place to this place. So you are having CH2 double bond C single bond OH, then there is H. This is called enol, and this was called as keto. So this was the keto form, this was the enol form, so it's called keto enol tautomerism. Now, how much enol content is produced? How much enol content is produced? That depends on certain factors. So what are those factors in which we get the more content of enol or more stable enol? So we'll write the statement over here. The first point to note is, so we'll write here factors affecting enol content. Factors affecting enol content. अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है कुछ फैक्टर्स, जैसे कि फैक्टर नंबर 1 हमारे पास है. सबसे पहली बात यह है कि कार्बोनिल्स आर यूजुअली मोर स्टेबल देन इनॉल. सो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म. सो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, because there is a C double bond O group which is very stable. So keto form is normally more stable than that of enol form. इसका मतलब ये हुआ कि keto form जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में होगा. अगर यहाँ देखेंगे it's around 90%, 99%. It is just 1%. तो नॉर्मली ये ज़्यादा होता है. अब कौन से फैक्टर्स इसको ज़्यादा बनाते हैं? What are the factors which makes this content to increase? These are. So हमारे पास क्या है? Enol content directly depend करता है number of carbonyl groups. So enol content is proportional to number of carbonyl groups. जितने कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना उसका इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू नोट. सेकेंड इज, अगर अब सेम होंगे, अगर इनॉल कंटेंट सेम होगा, इफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर सेम, तब क्या बनेगा? इफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर सेम, देन जो इनॉल कंटेंट आपका है that depends on directly on number of alpha hydrogens. जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे
उतना जो है उतना उसका इनॉल कंटेंट भी ज़्यादा होगा। सो इनॉल कंटेंट डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। जितने मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा होंगे, अकॉर्डिंगली जब टॉटोमेरिज्म दिखाएगा तो इनॉल कंटेंट भी बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप सेम है तब क्या होगा, तब आपका इनॉल कंटेंट जो है वो डिपेंड करेगा ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना आपका इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। इसकी इलस्ट्रेशन में दिखाऊंगा आफ्टरवर्ड्स, यू जस्ट वेट एंड वॉच। एग्जाम्पल्स हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट इज इनॉल कंटेंट जो है इंक्रीज होगा कब, if it acquires, it here means enol form acquires, क्या acquire करेगा, इनॉल कंटेंट इंक्रीज होगा अगर आपका जो इनॉल फॉर्म है वो एक्वायर करेगा एरोमेटिसिटी, ठीक, या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, या फिर उसमें जो है कंजुगेशन आएगा, ठीक। तो ये चीजें, इनॉल कंटेंट आपका इंक्रीज होगा अगर इनॉल फॉर्म में एक्वायर होगा एरोमेटिक कैरेक्टर, इफ देयर इज एरोमेटिक कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर इनॉल फॉर्म, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी, अगर उसमें कंजुगेशन डेवलप होगी, तब जो आपका इनॉल कंटेंट है वो राइज होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक। नाउ देयर इज वन लास्ट फैक्टर दैट इज सॉल्वेंट। हाँ, इनॉल कंटेंट जो है वो डिक्रीज होगा, इनॉल कंटेंट डिक्रीजेस इफ इट एक्वायर्स एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। सो अगर मॉलिक्यूल में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप होता है जब इनॉल फॉर्म बनता है, तब आपका जो इनॉल फॉर्म है वो नहीं बनेगा। मतलब ये कि इनॉल कंटेंट विल बी नेग्लेजिबल, इनॉल कंटेंट जो है उस वक्त नेग्लेजिबल होगा, दैट विल बी नेग्लेजिबल अगर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप होगा, ठीक। नेक्स्ट, इनॉल कंटेंट जो आपका है, इनॉल कंटेंट जो आपका है वो इंक्रीज होगा इफ सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक। इनॉल कंटेंट जो है वो डिक्रीज होगा इफ सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक हियर मीन्स अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर है, इट गिव्स यू H+ आल्सो, इथेनॉल है C2H5OH, दिस गिव्स यू H+ आल्सो, ठीक, दिस आल्सो गिव्स यू H+ OH-। अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस आल्सो गिव्स यू H+। तो मतलब ये कि जो H+ आपका देगा दैट इज कॉल्ड एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक हियर मीन्स विच गिव्स H+। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है अगर उनमें आप टॉटोमेरिज्म कराते हैं तो इनॉल कंटेंट कम होगा, ज्यादा उसका फॉर्म होगा कीटो में। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे, मतलब पोलर सॉल्वेंट्स है लाइक एसीटोन, सो एसीटोन जो है इट्स अ पोलर सॉल्वेंट बिकॉज देयर इज अ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हियर, इट्स पोलर, so it's a polar solvent but it doesn't give you H+ because it doesn't give you H+ as such. So what is it? Polar aprotic. So this is a polar aprotic solvent because oxygen और हाइड्रोजन के दरमियान लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट कैन गिव यू H+। जो O एंड H के दरमियान है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सिमिलरली दिस इज एन एसिड गिव्स यू H+। सो इट्स अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, बट पोलर एप्रोटिक जो है दैट इज दिस पोलर सॉल्वेंट, बट द फैक्ट इज इट डजंट गिव यू H+, so it's polar aprotic solvent। या DMSO डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, इनमें जो है इनमें इनॉल कंटेंट बढ़ता है, इनमें टॉटोमेरिज्म अच्छे से होता है और इनॉल कंटेंट जो है वो बढ़ता है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच यू मस्ट रिमेंबर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई
how much enol content is produced. How much enol content is produced. So I will repeat it. enol content डायरेक्टली डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स है उसमें, अगर सेम होंगे तो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा enol content, वो राइज होगा. enol content also rises अगर enol फॉर्म में एरोमेटिसिटी आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी या कंजुगेशन आएगी. अगर enol content में, अगर enol फॉर्म में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, तब enol content उसमें नेग्लेजिबल होगा, जीरो होगा, वो लगभग 99.9% कीटो फॉर्म में ही होगा. हाँ, देयर इज अ सॉल्वेंट इफेक्ट. अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होगा तो enol content will rise. If the solvent is polar protic, then there occurs decrease in enol content. I hope you understand it. Let's have some examples. So हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 हम लेंगे. Write correct order of enol content, or we can say stability of enol form. जितना enol content ज़्यादा होगा तो stability भी ज़्यादा होगी obviously. Write correct order of enol content among following. Ascending order में, descending order में. descending order मतलब ये कि पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, जिसमें enol content ज़्यादा होगा तब उसमें क्या है, नेक्स्ट कौन सा आएगा. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड OH. नंबर बी हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. नंबर सी हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH. नंबर डी हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3. ना अगर आप देखेंगे फैक्टर्स पे, सीधी सी बात है, अगर आप इन दो को कंपेयर करेंगे, देयर इज वन कार्बोनिल ग्रुप, सब में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. जब सब में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसका मतलब यह है कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा. सो सारे शो करेंगे टॉटोमेरिज्म. एक बात. दूसरी ये कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें लेकिन दो है. मतलब यह कि C और D will be having more enol content than A and B, or we can say C and D are more stable than C and D will give you more content than A and B. क्यों? Because इनमें more number of carbonyl groups है. I told you more the जितने कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा होंगे उतने enol content भी ज्यादा होगा. मतलब ये कि ये जो है टॉप पे आएंगे, ये इनॉल कंटेंट ज्यादा दिखाएंगे, ये दो इनॉल कंटेंट कम दिखाएंगे. अब मसला है कि इन दोनों में से कौन सा वाला सबसे टॉप आएगा, वो डिपेंड करेगा. देखिए इसमें भी दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, इसमें भी दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं. अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, जब कार्बोनिल ग्रुप सेम होते हैं तब डिपेंड करता है इनॉल कंटेंट ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स. अगर आप यहां गिनेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है 3 है, यहां 2 है, यहां कितने हुए 5. सो देयर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन्स. अगर इसमें देखेंगे इसमें 3 है, यहां 2 है, हो गए 5 और 3 हो गए 8. इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. सो इट्स हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन, इट्स हैविंग लेस अल्फा हाइड्रोजन. सो डी इज एट द टॉप हैविंग हाई इनॉल कंटेंट. दिस विल गिव यू हाई इनॉल कंटेंट देन सी. अब ए ज्यादा होगा कि बी ज्यादा होगा, इसमें भी एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी एक ही कार्बोनिल ग्रुप है. अब नेक्स्ट फैक्टर क्या रहेगा, नेक्स्ट फैक्टर रहेगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हैं. इसमें 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, बिकॉज दिस इज नॉट द अल्फा हाइड्रोजन, this is the functional group, this is the alpha carbon, this is alpha hydrogen, this is the functional group, alpha carbon, so alpha hydrogen हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन्स. मतलब ये कि ये आएगा बी, नंबर बी आएगा, उसके बाद नंबर ए आएगा लास्ट में. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज इनॉल कंटेंट और स्टेबिलिटी ऑफ दीज which gives you इनॉल फॉर्म. I hope you understand it. So फर्स्ट फैक्टर आपका क्लियर हो गया. जितने नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप ज्यादा होंगे उतना इनॉल कंटेंट उसमें ज्यादा बनेगा. अगर इनॉल कंटेंट, अगर नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप सेम रहेंगे तब आपका जो दूसरा फैक्टर है दैट इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, वो अगर ज्यादा होंगे तो इनॉल कंटेंट विल बी मोर. सो दिस गिव्स यू हाई इनॉल कंटेंट देन दिस एंड देन दिस.
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है यहां। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज which has maximum इनॉल कंटेंट या which gives maximum इनॉल कंटेंट। इनमें से कौन इनॉल कंटेंट जो है सबसे ज्यादा देगा? हमारे पास ऑप्शंस है ये वाला, this gets converted into this form, this is its carbonyl keto form, this enol form। नंबर बी हमारे पास है नंबर सी हमारे पास है तो ये इनॉल फॉर्म इसकी है, दिस इज द इनॉल फॉर्म, इट हैज। नंबर डी हमारे पास है, नंबर डी दैट इज ऐसे नहीं है, सॉरी, so we have here this form, no form। so अब सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं यहां ये इसकी इनॉल फॉर्म है, ये इसकी इनॉल फॉर्म है। आप देख सकते हैं देयर इज नो कंजुगेशन एट ऑल, देयर इज कंजुगेशन डबल सिंगल डबल, there is conjugation double single double also, here also conjugation, here also conjugation, but if you can look here, it is double single double single double, it's also conjugation, but the point is it gets you a benzene ring, means aromatic character। so D में आपका aromatic character आता है, so in D you are getting an aromatic character, you are getting an aromatic character, so it's having high stability because the order, अगर आप order देखेंगे, order में जो है there is what, there is aromatic character in the order। so we have D at the top, so D is having maximum enol content because once it gets converted into enol form, it gets you aromatic character, so this will be having high enol content, so D is the correct answer। so वो आपके ऑर्डर के हिसाब से ही देखना है, पहला फैक्टर क्या है उसमें, एरोमेटिक कैरेक्टर, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तीसरा कंजुगेशन है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, यू कैन सी, अगर आप देखेंगे इसमें विच इज स्टेबल इनॉल फॉर्म, इनमें से कौन सी इनॉल फॉर्म स्टेबल है? हमारे पास है एस्टोएस्टिक एस्टर, एस्टोएसिटेट, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक सपोज हम बनाएंगे, इसमें दो इनॉल फॉर्म बनेंगे, मतलब ये कि आप ऐसे बनाइए, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। आप इसमें से पहले निकालिए, कीप दिस फिक्स्ड, कीप दिस फिक्स्ड, लेट्स कीप दिस कार्बोनिल फिक्स्ड, सो यू हैव केप्ट इट फिक्स्ड, सो वी हैव CH2 देन C डब सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इस टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को हमने निकाला और यहां पहुंचाया, तो इट गेट्स दिस थिंग। नेक्स्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, वी हैव केप्ट दिस फिक्स्ड, वी हैव केप्ट दिस फिक्स्ड। तो हम अब instead of removing hydrogen from this alpha carbon, we'll remove it from this alpha carbon, so we're getting CH double bond C single bond OH then CH3। इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा, A और B? A और B। अगर आप देखेंगे, इफ यू कैन लुक हेयर, इसमें क्या है, डबल सिंगल सिंगल डबल, नेवरदलेस देयर आर चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होता है, ये हाइड्रोजन और ये O हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा ऊपर से, बट देयर इज नो कंजुगेशन एट ऑल। अगर इसमें देखेंगे, इट्स डबल सिंगल डबल, सो डबल सिंगल डबल मीन्स देयर इज कंजुगेशन। इन एडिशन टू कंजुगेशन देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो, सो देयर आर टू फैक्टर्स, कंजुगेशन एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जब कंजुगेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक्वायर करेगा ज्यादा स्टेबिलिटी, मीन्स B विल बी मोर स्टेबल देन A, बिकॉज इफ यू लुक एट द फैक्टर्स, इनॉल कंटेंट जो है वो इंक्रीज होगा इफ इनॉल फॉर्म एक्वायर्स, या तो एरोमेटिक कैरेक्टर एक्वायर करेगा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या कंजुगेशन। उस वाले एग्जाम्पल में
कंजुगेशन जो है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों होती है, लेकिन दूसरे केस में ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर्स। तो इस वजह से जो है अगर आप देखेंगे यहां B इज मोर स्टेबल देन A बिकॉज देयर इज कंजुगेशन एंड H बॉन्डिंग, बट देयर इज ओनली H बॉन्डिंग, no conjugation at all. That's why B will be more stable than A. So B, that is the enol form, will be more stable than A enol form. I hope you understand it. So in general जो है कीटो फॉर्म जो है वो स्टेबल होता है, लेकिन वो कब लेस स्टेबल होगा, कम अवेलेबल होगा, जब एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा, वो ध्यान में रखना है। तो इनॉल कंटेंट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली होगा, अगर इन दोनों की कंपेयर करेंगे, इनॉल कंटेंट विल बी हियर अराउंड 25% to 30%, दिस विल बी अराउंड 60 to 65%, उस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, हमारे पास है ये वाला सिस्टम, वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम। अगर आप इसमें देखेंगे, दिस कन्वर्ट्स टू दिस, ये यहां से H निकलेगा, यहां पहुंचेगा तो ये बनेगा OH, ये बनेगा डबल बॉन्ड। सो एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप होगा, तो दिस विल बी 1% एंड दिस विल बी अराउंड 99%। सो इनॉल कंटेंट वेरी हाई है बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। सो फिनॉल जो है, फिनॉल यूजुअली एग्जिस्ट करता है इन दिस फॉर्म रादर देन इन दिस फॉर्म, दैट्स व्हाई इट्स 99% लाइक दिस। There will be 0.1 or 1% of this keto form. Next हमारे पास है one more example, that is अगर आप यहाँ देखेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे, सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे, हमारे पास एक स्क्वायर दिस है साइक्लो, it's like this. So we are having ring forms, ब्यूटेन टाइप, एंड देयर इज वन डबल बॉन्ड एंड देयर इज वन OH ग्रुप ओवर हियर। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। सो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू डबल बॉन्ड मीन्स sp2 कार्बन विल नॉट शो टॉटामेरिज्म, तो ये दिखाएगा। तो दिस कन्वर्ट्स टू दिस फॉर्म, ये अपना डबल बॉन्ड है, जब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ जाएगा तो ये बनेगा OH, ये बनेगा डबल बॉन्ड। इट्स लाइक दिस, इट्स 1 2 and 3, so there is 1 3 माइग्रेशन। सो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड, दैट इज दिस। अगर आप देखेंगे, दिस इज द कीटो फॉर्म एंड दिस इज द इनॉल फॉर्म। सो इनॉल फॉर्म इज हाईली अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज इट इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कब होता है? जब उसमें 4n+2 एरोमेटिक कब होता है? जब उसमें 4n+2 रूल अप्लाई होता है। तो जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, तब जो रूल है दैट इज एंटी एरोमेटिक। अब देखिए 4n मीन्स n इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन, n जब 0 देंगे तो 0 होंगे, सॉरी 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट होगा, इट्स 1 2 3 सो ऑन। जब 1 देंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, जब 1 देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 देंगे 4 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जब 3 देंगे 4 12 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये आएंगे। अगर आप इसमें देखेंगे, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स इट ओबेज विच रूल? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। एरोमेटिक कैरेक्टर में क्या होता है? एरोमेटिक कैरेक्टर में रूल होता है हक्कल्स रूल, दैट मीन्स विच ओबेज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं हक्कल्स रूल। सो मतलब ये कि उस साइक्लिक सिस्टम में molecule should be cyclic, conjugated, sp2 hybridizer each carbon atom, and it must obey a rule that's called Huckel's rule, वो आपको पता होना चाहिए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो हक्कल रूल है, where n is equal to here 0 1 2 3 so on। जब 0 देंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, जब 1 देंगे 4 1 4 4 + 2 is 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप 3 देंगे 4 3 12 मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 2 8 + 10 मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन, देन 14 एक्सेट्रा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में होंगे तब आपका एरोमेटिक कैरेक्टर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 2 4 2 6, इट्स हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट ओबेज विच रूल? इट ओबेज हक्कल्स रूल, दैट मीन्स इट्स एरोमेटिक। अगर आप यहाँ देखेंगे, इट ओबेज विच रूल? 4n रूल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, विच इज एंटी एरोमेटिक सिस्टम।
rest is same. It must be cyclic, conjugated, planar, and each carbon must be sp2 hybridized. So वो same है, लेकिन rule क्या होता है? Rule is 4n pi rule in case of anti-aromatic. In case of aromatic there is 4n plus 2 pi electron rule. तो ये एंटी एरोमेटिक है, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये जो है ये लगभग नेग्लिजिबल बनेगा, 0% बनेगा। तो ज्यादातर इसी हालत में अवेलेबल होगा अराउंड 99.9%। सो कीटो फॉर्म इज हाईली स्टेबल। अगर आप नेक्स्ट यहां पे देखेंगे क्वेश्चन, हमारे पास ये वाली एग्जांपल है। सो वी आर हैविंग दिस एग्जांपल। ये कीटो फॉर्म है। बताइए इनो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? तो आपके पास ये वाला ऐसे है, ये जो है ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये यहां पहुंचेगा, या ये डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आप देखेंगे ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है। अगर आप देखेंगे इसमें ये वाला जो रिंग है, इसमें एक डबल बॉन्ड यहां से, एक डबल बॉन्ड यहां से है, मतलब ये बनेगा एंटी एरोमेटिक। जब ये एंटी एरोमेटिक बनेगा तो हाईली अनस्टेबल बनेगा, लगभग ये 0.1% बनेगा, ये बनेगा 99.9% रहेगा। तो बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर दिस वोंट ऑकर एट ऑल, 0.001% बनेगा, नेग्लिजिबल। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इनॉल कंटेंट इन कंपाउंड्स। दिस इज हाउ यू फाइंड इनॉल कंटेंट इन कंपाउंड्स। वन मोर एग्जांपल हम लेंगे। हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये वाला सिस्टम है। इसमें बहुत सारे इनॉल फॉर्म्स बन सकते हैं। एक सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? एक इनॉल फॉर्म क्या बनेगा? एक इनॉल फॉर्म ये बनेगा। ये एक इनॉल फॉर्म बनेगा। मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला, यहां पहुंच गया, तो नेक्स्ट इनॉल फॉर्म इज तो इंस्टेड आई रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस, आई रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस, तो ये बनेगा। नंबर सी इज सो आई हैव रिमूव्ड इन दो केसेस में मैंने रिमूव किया हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन एंड दिस कार्बन ओनली। आई केप्ट दिस कार्बनल एज सच। लेकिन तीसरा जो है, मतलब ये कि यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ OH आया, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो यहाँ चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकाला और यहाँ चला जाएगा, तो ऐसे बनेगा। नंबर डी ऑप्शन इज OH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरीके से जो है, अब इनमें से ज़्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन होगा? सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ देखेंगे देयर इज वन डबल बॉन्ड ओनली एंड अनदर डबल बॉन्ड इज हियर, सो देयर इज अ आइसोलेटेड टाइप ऑफ सिचुएशन, सो देयर इज नो कंजुगेशन एट ऑल। यहाँ देखेंगे आप, ये डबल बॉन्ड है, nevertheless there are chance of hydrogen bonding also, there are chance of hydrogen bonding also in each case, so there are chance of hydrogen bonding in each case. Now there is no conjugation at all, there is no conjugation at all, but if you can look here, double, single, double, so there is conjugation as well as hydrogen bonding, so this will be highly stable. So ये जो है, this will be the more stable in all form of this particular carbonyl system. This is the example, this is the answer. So आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि एरोमेटिक कैरेक्टर तो नहीं बनता है, नंबर 1, नंबर 2 उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है, नंबर 3 उसमें कंजुगेशन तो नहीं आती है। उसी बिना पर आप बोल सकते हैं कि देयर इज विच इज हैविंग हाई इनॉल कंटेंट एंड विच इज हैविंग लो इनॉल कंटेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो I told you earlier solvent has an effect. Similarly solvent has an effect. अगर आपके पास ये है C डबल बॉन्ड O then CH3, तो ये इनॉल फॉर्म में कब तब्दील होगा? सो वी हैव डबल बॉन्ड हियर OH then CH3। तो अगर आपने ऊपर सॉल्वेंट डाला है DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, तो क्या होगा? डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में ये थोड़ा ज़्यादा बनेगा, सो इनॉल कॉन्टेंट विल राइज। बट अगर आप पानी डालेंगे या फिर इथनॉल डालेंगे तो कीटो फॉर्म ज़्यादा बनेगा, कीटो फॉर्म ज़्यादा बनेगा। सो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में थोड़ा सा फॉरवर्ड चला जाएगा, बिकॉज जितना पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा उतना उसमें इनॉल कंटेंट राइज होगा, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे उतना उसमें इनॉल कंटेंट कम होगा, मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड्स, मतलब कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगा। दिस इज द केस ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नोट में आप एक इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, वो ये कि नाइट्रोफॉर्म्स जो है वो आइसोमर टॉटोमर्स दिखाते हैं, नाइट्रस एसिड भी दिखाता है टॉटोमेरिज्म, इवन इफ इट डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन एट ऑल। सो नाइट्रस एसिड जो है इट फॉर्म्स टॉटोमेरिज्म, तो नाइट्रस एसिड जो है HNO2 ये टॉटोमेरिज्म दिखाता है। देयर इज नो अल्फा कार्बन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एट ऑल, बट दिस शोज टॉटोमेरिज्म। सिमिलरली आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड भी दिखाता है टॉटोमेरिज्म। इट इज हाइड्रोजन साइनाइड, इट्स हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड ये भी टॉटोमर्स है, ये टॉटोमेरिज्म दिखाता है। बट द पॉइंट इज इसमें अगर R होगा, यहां एल्काइल ग्रुप होगा, तो एल्काइल साइनाइड्स डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। एल्काइल साइनाइड्स जो है वो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, दे विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, वो ये आपको ध्यान में रखना है। सो एल्काइल साइनाइड्स टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, एल्काइल नाइट्राइट्स दिखाते हैं। एल्काइल नाइट्राइट्स कंडीशन इज देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन। अब नाइट्रस एसिड भी दिखाता है इवन इफ देयर इज नो हाइड्रोजन एट ऑल, और अल्काइल साइनाइड्स अगर उनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, मतलब साइनाइड्स नहीं दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते हैं टॉटोमेरिज्म, एक्सेप्ट हाइड्रोजन साइनाइड वो दिखाता है, एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। सो दीज आर बेसिकली द टॉटोमर्स, बट एल्काइल साइनाइड्स जो है वो नहीं दिखाते हैं, एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स दिखाते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाइट्रो कंपाउंड्स आर फंक्शनल ग्रुप विच कैन शो टॉटोमेरिज्म प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। लेकिन साइनाइड्स नहीं दिखाते हैं इवन इफ देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, बट साइनाइड्स में हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो टॉटोमर्स बनाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर जेईई नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई शुड ऐड अगेन हियर इज, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, यहां पे पॉइंट लिखूंगा मैं, टॉटोमर्स जो है, टॉटोमर्स आर आल्सो functional isomers. Tautomers are also functional isomers. अगर आप देखेंगे यहां it is CH3C double bond OH, तो ये कन्वर्ट होगा into CH2 double bond C single bond OH and H। ये कीटो फॉर्म है एंड ये इनॉल फॉर्म है। तो there is basically a functional group which is ketonic group, carbonyl group. There is a functional group that's alcohol group, alcohol. So there is alcohol functionality and there is carbonyl functionality. So the functional group is different. वो वाले isomers जिनमें functional group different होता है, they are called functional isomers. Similarly here, these tautomers are therefore also called functional isomers. So tautomers जितने भी हमारे पास होते हैं वो functional isomers भी होते हैं। But अगर आपकी क्वेश्चन आया, if there is a question that is, हमारे पास एक क्वेश्चन है which among the following is correct for CH3 C double bond OH, ये ऑप्शन ए इज दे आर टॉटोमर्स, ऑप्शन बी इज दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, ऑप्शन सी दे आर पोजिशन आइसोमर्स, ऑप्शन डी दे आर मेटामर्स। ऑप्शन, ये चार ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा? व्हाट इज द ऑप्शन नाउ? आई टोल्ड यू दीज आर टॉटोमर्स, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, बट द पॉइंट इज टॉटोमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। सो अब आपका मसला खड़ा हो गया यहां कि वेदर वी विल आंसर टॉटोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स, व्हाट कैन बी द ट्रू आंसर। इसके लिए आपको एक ऑर्डर याद रखना है, दैट इज RTFM CP, RTFM CP,
So R stands for here ring chain isomerism, T is tautomerism, F is functional isomerism, M is metamerism, and C is here chain isomerism, P is here position isomerism. ये ऑर्डर है. So सबसे टॉप पे रिंग चेन है, आपको रिंग चेन देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको टॉटोमर देखना पड़ेगा, अगर वो नहीं होगा तब आपको फंक्शनल देखना पड़ेगा. So since tautomer is at the top, so we'll give the answer as tautomers. We will give the answer as tautomers. So these are tautomers. So you will not, nevertheless they are functional isomers also, but functional isomerism जो है उसकी priority कम है as compared to tautomerism. That's why the answer would be tautomers. So RTFMCP आप इसको याद भी रख सकते हैं ऐसे, रहो ताजा FM चलाओ पूरा, रहो ताजा FM चलाओ पूरा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ये. और यू कैन मेक योर ओन नेमोनिक्स, तो जो है ये याद रख सकते हैं आप. सो रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको पहले देखना है, अगर वो होगा तो वही आएगा, अगर वो नहीं तो टॉटोमर देखना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो फिर फंक्शनल देखना पड़ेगा, तो फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखना पड़ेगा. आपकी सारे आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कंडीशंस पता है. तो टॉटोमर के हवाले से ये मसला है कि देखिए, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो, रिंग चेन आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स. अगर आपको याद होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म अगर होंगे तो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन आप उनको उस वक्त बोलेंगे रिंग चेन की फंक्शनल बोलेंगे, आप बोलेंगे रिंग चेन. क्यों? रिंग चेन इज हैविंग द टॉप प्रायोरिटी. रिंग चेन इज हैविंग अ टॉप प्रायोरिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. अगर इसमें ऑप्शन होता ई, ऑप्शन बी होता, बिल फर्ज अगर इसमें ऑप्शन ई होता बोथ ए एंड बी, तब ये आता आंसर. अगर इसमें ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी, तब ये आंसर आता. अगर इसमें इतने ही ऑप्शन थे तब ये आंसर आता अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. अगर इसमें ये ऑप्शन भी था बोथ एंड बी, क्योंकि ये सच है, टॉटोमर भी है, ये फंक्शनल आइसोमर्स भी है, तो ई विल बी द करेक्ट आंसर एट दैट टाइम. जब नहीं दिखाएगा बोथ तब प्रायोरिटी देखेंगे आप, जब दिखाएगा बोथ ऑब्वियसली आपको देखना है कि ये यही है, ये भी यही है, तो ये आंसर आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. दिस वॉज ऑल अबाउट टॉटोमेरिज्म. What are the conditions in it and how you can get high in all content, what is the effect of solvent, all these things have been talked about in this video. Please do watch it carefully, make notes. If you like my videos, please do not hesitate to share my channel, let all your friends subscribe it, and I'll come up with good videos related to GOC, related to every single topic of your chemistry course. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.